let's make use of his presence in Delhi to have a little small chat. So there is no specific agenda for today's discussion, but it will be just a basic idea in terms of his experience sharing in audio industry. For almost 10 years he has been in Bombay and composed music for various films, and one of the last release was Anarkali of Ara, which was a kind of a musical film. Yeah. Though in Bollywood every film is musical, but then it was a musical in a different sense of the term because it was a character who is a singer and dancer. In Bihar there are different kind of genres exist in terms of the musicians and singers. So I thought let's have a little small conversation in terms of what needs to be done and all that. So primarily give some basic idea in terms of how we will concentrate mainly on this Anarkali film. That when director approached you that this is a film which they have decided that you would be doing it, and it's a musical film in different sense of the term. So how did you decided that what kind of composition you should have, thinking that it is not a typical Bollywood film, but it is from a background of a Bihar where this tradition exists? Yeah. So the initial challenge was that I am basically from Delhi and I know very less of Bihar and that music. So I had to do a lot of research, and the director of the film, writer-director Avinash Das, gave me many inputs from his side that this is the kind of music that I am looking at. And then उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा क्लब किया हमने अपना जो बॉलीवुड का रिक्वायरमेंट रहता है जो कि थोड़ा सा अलग होता है उससे, because there was always a possibility of getting trapped into the Bhojpuri zone. So that was a challenge. Danger. That was a danger, that was a challenge. So वही basically. So I researched a lot on the music and then created those songs. So when you say you researched a lot, so a lot means a lot. So how did you go about doing a research? Mainly YouTube videos. And Avinash Das gave me many links to many of his favorite videos and songs and many folk songs. So I went through all those links. So folk has its own, I would say, mystery and interest and different kind of flavor. Yeah. So there are not so many folk songs which are being adapted into the Bollywood scenario. So is any specific song which is, I will not say inspired from, but some that kind of feel should be there? So I can say there is a typical scale of UP and Bihar which is called Pili. It's a rag. It's a scale. So I used that scale a lot. But ऐसे मतलब directly कहीं से कुछ inspire होके नहीं किया. मतलब all the folk songs, all the other songs were actually specifically composed for this film. So there was no direct influence from any song or any folk. So also when sometime people compose something and then they present it to their director or producer for that matter, and sometimes they think this is not something what they're looking at. Yeah. So in this film, was there any situation in which you reworked in terms of the composition? Yeah, 2-3 places I had to rework 2-3 times. There was a opening song of Anarkali. So she was performing for the first time. तो उसके लिए decide करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था. I composed 2-3 compositions, and director was not very sure about that. The main challenge that we actually faced was all the lyricists were reluctant to write double meaning songs. So this is the story of a singer who actually sings double meaning songs, and all the people who have written the songs are actually based out of Bombay and work for Bollywood. So they didn't want to be labeled as Bhojpuri composers, the writers. Right. So in many cases, I actually
wrote something really really bad and then उसके बाद फिर धीरे धीरे होने लगा, उन लोगों को भी थोड़ा खुल गया कि चलो यार लिख लेते हैं ऐसा. मैंने उनको ये बोला कि यार एक्चुअली इट्स नॉट यू हु इज राइटिंग, एक्चुअली द कैरेक्टर दैट इज सिंगिंग दैट सॉन्ग, दो सॉन्ग. सो डोंट फील शाई, go all out. And from your own experience of working in different kind of films, say for example art house films, Yeah. which you did with Gandhi, Ship of Theseus. Ship of Theseus. Yeah. So what was the major difference in terms of doing the composition for a film like Ship of Theseus, and which is more of art house kind of stuff than this one? So in Ship of Theseus there was very specific brief about the track that I did. It was already written in Prakrit language, and I was told that we are not looking at any chanting type of thing or any bhajan, so it has to be very prehistoric. So वो brief मिलने से फिर थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि क्या करना है, but इससे काफ़ी अलग होता है, मतलब वो. And when there is, I mean, as such, so far as my knowledge goes, there is no any specific training institution like this for music directors. There is none. So how did you begin? How did you decide that I would like to be a composer? So that's a very personal question. Huh? So when I used to listen to the songs, very early in my life, I could make out that it's not a singer who is responsible for this thing. It's somebody else. So the writer of the song and the composer of the song, who are actually creating this complete mood. So I was interested in composers and lyricists more than singers. So वहीं से फिर शुरू हुआ धीरे धीरे कि यार ऐसा ही कुछ करना चाहिए, कुछ create करना चाहिए. But as a composer, that there is not a very certain kind of a profession, in the sense that you compose something and some people like it, some people don't like it. So it's a very uncertain kind of a profession, and also there is a requirement of understanding at least, I would say, 10 to 20 musical instrument, whether suppose he is playing something, Yeah. whether it's a guitar, harmonium or something else. So there is a certain understanding is required whether he is playing right or wrong. So there is also a certain kind of I would say challenge or a fear that, oh, I need to learn these kind of instrument to identify whether he is performing right or not. So how did you inculcate that challenge in terms of understanding the various instruments which are a part of composer? So okay. So you don't need to master all the instruments. If you master one, you are almost sure कि मतलब ये जो बंदा बजा रहा है वो सही बजा रहा है कि नहीं बजा रहा है. उसमें सब कुछ मास्टर करने की जरूरत नहीं होती है. तो ये लोगों को भ्रम है कि अब म्यूजिक कंपोजर नोज ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स. इट्स नॉट लाइक दैट. इनफैक्ट कुछ म्यूजिक कंपोजर ऐसे भी हैं जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते. I at least play flute and piano. So how do they decide whether he is playing right or wrong? Suppose she is playing a guitar, Yeah. or somebody is playing a dolak, or dolak is still simple. Say for example piano, Yeah. for example, or sarangi for that matter, which is much more complicated. So basically, or violin. So how do you decide that whether he is performing right or wrong? So actually, any person that is playing, they are playing the notes only, na? They are playing the sare ga ma only. So that way you can decide very easily. You know one instrument very well, and you have a sense of sur. So that's very easy. That comes very naturally. Okay. So what is the primary difference do you find when you compose for a ad film and you compose for a song which is a feature film? So in ad film we basically compose a background track. We don't create songs. But वो ये है कि वहाँ पर आपको जो भी मैजिक दिखाना है वो 30 सेकंड में दिखाना है. यहाँ पे आपके पास 2.5 मिनट है. And you have lyrics, proper lyrics there. So I have begun. Now you can ask any question. We have some students who are from music background, and rest are not from music background. So you can ask anything. We have around 5 to 6 students from sound recording course who intend to be a composer one day. अच्छा, तो बताइए कौन कौन? But you also play some instrument. Yes, sir, I play guitar. You play guitar. And you sir? No, sir. अच्छा, don't play any. you don't play. Okay. He just carry the guitar to influence the girls.
I know Guitar. many people who do that. Any other instrument? Tabla. Tabla. Yeah? So I used to play drums, sir. Drums. Okay, okay. Instruments you have forgotten now? No, sir. Actually, I was studying from last from Trinity College of London on jazz and blues, especially. Hmm. And I did that course because of the sound engineering. That's right. So I used to. So you left that. Yes. तो सवाल ये लोग पूछेंगे मैं तो मैंने काफी आप नहीं पूछेंगे तो फिर मैं पूछूंगा. सर I'm Subhajit from sound department sir. सर मैंने एक ये कंफ्यूजन है कि सर कंपोज अगर कोई धुन कंपोज हो जाता है हाँ. उसके बाद लिरिक्स लिखना इजी होता है या फिर लिरिक्स लिखने के बाद वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. वेरी गुड क्वेश्चन. हाँ. तो एक्चुअली दोनों तरह से काम होता है. मतलब लिरिक्स पहले लिखे जाते हैं फिर कॉम्पोजिशन बनती है, या कॉम्पोजिशन पहले बनती है लिरिक्स बाद में. ये दोनों तरह से काम होता है और उसमें इजी और डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं होता. वो दोनों में उतना ही माथा फोड़ना पड़ता है. What is the trend? What people do generally? Out of 10, say for example, 10 songs which you get to hear. हाँ, तो almost 7 songs are composed first and then lyrics come. Lyrics are written after that. क्योंकि it's basically like that. If there is a situation, you have to crack that situation. If the onus is on lyricist, then he will have to write first. If the onus is on the composer, then he will have to compose first. तो जिसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है वो पहले काम करता है. हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? Sir, if suppose there is a song, अब योगराज से, तो अब suppose there is a song और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, कोरस है और मतलब वर्स है कहीं पे सोलो है. तो हर जब जगह होती है जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब जो एक दूसरे से आप जोड़ते हैं. अगर सपोज इफ देयर इज अ सॉन्ग, जब भी मैं कहीं आओगे जब तुम साजना, ठीक है. उसमें जब एक ढोलक बजता है और उसके बाद ही वोकल्स आ जाने लगते हैं और वो एकदम एक्यूरेट साउंड करता है विद डायनामिक्स, मतलब अकूस्टिक्स के साथ बिल्कुल भी हार्श साउंड नहीं करता जब वो होता है ट्रांजिशन. सर वो इतना सिंपलेस्ट ट्रांजिशन बस छोटा सा है लेकिन उसमें बिल्कुल पता नहीं चलता है कि एक इंस्ट्रूमेंट से हम वोकल्स पे स्विच कर रहे हैं. अच्छा. तो उसके लिए फेडर्स के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? फेडर्स, फेड इन फेड आउट्स जो होते हैं, धीरे धीरे बंद हो जाना, फिर धीरे से स्टार्ट होना और आगे जाके लाउड हो जाना, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये थोड़ा बेसिकली साउंड इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, टेक्निकल. तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार आप फेडर्स यूज़ करें. आप बेसिकली उसको एक मतलब जो भी एक तबला या जो चीज़ बैकग्राउंड में बज रही है आप उसको और पीछे ले जाते हो तो आप उसको रिवर्ब देते हो, तो उस तरह से भी उसको एक स्पेस दी जाती है. तो हॉरिजॉन्टली आप प्लेस करते हो चीज़ों को ताकि वो अलग से सुनाई दे, तो आपको उसका लेवल कम करने की जरूरत नहीं पड़ती. बैलेंसिंग तो करनी पड़ती है लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने ये इंस्ट्रूमेंट शुरू किया और फिर आपने इसको धीरे से बढ़ाया और फिर कम किया, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती. वो अपने एक लेवल पे आप मेंटेन करते हो और उसी पे रहता है. तबला या रिदम या जो भी ढोलक बज रही है वो एक ही लेवल पे रहता है. उसको एक अपना प्लेस दिया जाता है, मतलब साउंड स्पेक्ट्रम जो होता है उसके अंदर उसको एक प्लेस दिया जाता है और वो उसी लेवल पे प्ले होता है. अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो तुम और पूछ सकते हो, मैं समझा नहीं. आया जैसा आपने बताया, लेकिन अब एक जब वास्ट डिफरेंसेस हो जाते हैं, सपोज एक क्रेजी कोई रॉक सॉन्ग चल रहा है और एक क्रेजी सोलो आता है जो कि बहुत फास्ट हो जाता है आगे चल के, एक तरह से देखा जाए तो बीपीएम जो बीट्स पर मिनट है वो हाई हो जाती है उस टाइम के लिए गाने की. नहीं, ऐसा तो बहुत कम होता है एक्चुअली, मतलब ऐसा बहुत कम होता है. बीपीएम तो सेम ही रहता है. I'm not getting the actually those keywords. He was talking about crescendo and builds up. Pardon? Crescendo and builds up, sir. Crescendo. Crescendo and Builds up. Builds up. Rise of the next part जो आता है उसके पहले होता है ना build-up. नहीं, क्रिसेंडो तो समझ में आया, दूसरा समझ में नहीं आ दूसरा is the build up. रहा. अच्छा, बिल्डअप. अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं आप. अच्छा. हाँ, तो वो प्लेइंग में करना पड़ता है. मतलब अगर इस तरह का कोई भी क्रिसेंडो या एक्सप्रेशन देना है आपको तो वो तो उस समय जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो द प्लेयर हैज टू डू दैट. वो फेडर से नहीं किया जाता. हाँ,
वो मैं जो आपने बताया मैं समझा, हाँ। बट एक अलग मायने हाँ। well I get it. तो आप सब लोग तो एक्चुअली फिल्म मेकर्स ही बनना चाहते हो ना, चाहे आप एडिटिंग डिपार्टमेंट के हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के हो, मतलब डायरेक्शन के हो, अल्टीमेटली तो फिल्म मेकर ही बनेंगे ना। तो आपको क्या लगता है, मतलब बैकग्राउंड स्कोर जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है? मतलब मैं थोड़ा स्पेसिफिकली जानना चाहूँगा, कोई अगर बताना चाहे बताइए। जितने भी काइंड ऑफ जॉनर्स होते हैं, हाँ। एक हर जॉनर अलग अलग जॉनर्स होता है, एक अलग अलग इमोशन को रिप्रेजेंट करता है अगर देखा जाए तो। हाँ। और हर सीन पर जो आपकी फ्रेम चल रही है उस टाइम पर, उस टाइम में क्या इमोशन आपको ऑडियंस को देना है, उस म्यूजिक को अगर आप डालेंगे तो जनता उससे आसानी से कनेक्ट कर पाएगी उस सीन से। अगर आप एक फ्रेम सीधी कर रहे हैं, अगर आप फ्रेम दिखा रहे हैं म्यूट, तो उसमें अगर रोना धोना चल रहा है तो फीलिंग्स नहीं आएंगी जब तक उसमें सितार वाली ट्यून या फिर वायलिन वाली ट्यून्स नहीं बजेंगी। अगर आप चाहें उसमें अगर आप बेस गिटार बजाएंगे जो कि थोड़ा एग्रेसिव होता है, अलग हर इंस्ट्रूमेंट की एक अलग टोन होती है जो कि एक फीलिंग्स डेवलप करता है ऑडियंस में। और उस टाइम पर सही सिचुएशन पे सही इंस्ट्रूमेंट्स बजाने पे जनता और कनेक्ट कर पाती है, तो इट मेक्स मोर फ्लेवर, ऐड फ्लेवर्स टू द फिल्म। तो आपने बैकग्राउंड को लेके कभी कुछ एक्सपेरिमेंट किया है क्या, बैकग्राउंड स्कोर को लेके? हाँ, जैसे कि अगर एक फाइट सीक्वेंस चल रहा है, हाँ। और उस समय बहुत तेज अगर वायलिन बज रहे हैं, बहुत ही तेज और सोलो में और उसमें हम अगर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की डाल देंगे तो वो एक अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, ये तो एक्सट्रीम्स हो गए। बट मैं कह रहा हूँ कि आपने ऐसा कभी ट्राई किया है कि एक विजुअल है, ठीक है, जिसमें डायलॉग्स नहीं है, एक विजुअल है जिसमें कुछ भी हो सकता है, वो मतलब सीनिक ब्यूटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब उसके ऊपर आपने कभी ऐसा ट्राई किया है कि मैं इसमें अलग अलग तरह की म्यूजिक लगा के देखूं कि क्या इम्पैक्ट आता है? इट्स लाइक एक कोई भी सीन है, नॉर्मल सा कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर उसमें हम थोड़ा हॉरर म्यूजिक डाल दें तो फिर वो जो विजुअल्स है उसका फील चेंज हो जाएगा। करेक्ट। और अगर उसमें कोई हैप्पी म्यूजिक डाले तो वो विजुअल्स हमें हैप्पी लगेगा जितना वो हॉरर में लगेगा। तो म्यूजिक भी, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सुपर। तो according to me sir, it's the creating of ambience. या आपने किल बिल देखी है फिल्म? Yes. किल बिल सबने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी वो देख ले। तो उसमें एक बहुत बड़ा एक मैसेकर सीन है। तो आमतौर पे जिस तरह का म्यूजिक उस टाइप के सीन पे, मतलब उस टाइप के विजुअल पे जो लगाया जाता है वो बहुत अलग तरह का होता था उससे पहले, लेकिन टेरेंटिनो ने यहाँ पे काफ़ी एक अपबीट म्यूजिक गिटार्स के साथ और ड्रम्स के साथ प्ले किया। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मैसेकर नहीं चल रहा है, बेसिकली ये प्ले चल रहा है। मतलब जो किल बिल में जो उमा थर्मन जो है जब सबको काट रही है, मार रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खेल रही है, तो वो उतना गोरी नहीं लगता है, आप उसको एंजॉय करते हो अलग तरह से। तो ये बहुत ज़रूरी करना, ये बहुत ज़्यादा करके देखना चाहिए कि आप कोई भी एक आपको अच्छा लगता है एक विजुअल जिसके अंदर यूजुअली डायलॉग ना हो, कोई विजुअल, उस पर आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अपनी तरफ से, ऐसा म्यूजिक लगा के देखते हैं क्या होता है ना। या जैसे देयर कुड बी अ सीन दैट डिमांड्स अ रिदमिक म्यूजिक, है ना, तो आप कोशिश करो कि उसके अंदर रिदमिक म्यूजिक नहीं लगा के नॉन रिदमिक म्यूजिक डाल के देखते हैं, ठीक है। अलग अलग जॉनर म्यूजिक का जो आप पसंद करते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लगा वो लगाने की जरूरत नहीं है, बट इस तरह का म्यूजिक आप कर सकते हो जैसे इन्होंने बोला वो हॉरर, ठीक है, या ईरी म्यूजिक लगा के आपने देखा, तो उस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। उससे आपको काफ़ी समझ में आएगा कि बैकग्राउंड स्कोर जो है वो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, हाँ। तो सपोज आपको कोई फिल्म के सॉन्ग्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट आ गया है और बहुत सारे सॉन्ग्स बन चुके हैं और डायरेक्टर चाहता है कि कुछ नया करके दिखाओ, जो ठीक है हम नया कर लेंगे, लेकिन फिर बीच में कंपोज कर रहे हो आप और फिर ऐसा होता है कि मेरे से हो नहीं रहा कंपोज, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे आप? क्योंकि ऐसे में तो डिप्रेस हो जाओगे, तो ऐसा तो नहीं, तो उसमें तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं और क्या। सब अगर हम ब्रेक भी लें तो फिर जिस सिचुएशन में हम थे, उसका एक सिंपल तरीका है, आप जो कोशिश कर रहे हो जिसमें कुछ नहीं हो रहा उसको छोड़ के दूसरे तरीके से करो, छोड़ दो उसको। नहीं, मतलब अलग करने का, डिफरेंट करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना। तो वो जिस जॉनर में आप फंसे हो उसको छोड़ के किसी और में कोशिश करो। पर वो सेम फील लाना
पड़ जाएगा उतना म्यूज़िक की बहुत कमाल की खासियत होती है कि वो बेसिकली जो भी आपसे चाहता है ना, जब वो कुछ डिफरेंट चाहता है तो बेसिकली वो चाहता है कि कुछ आप ऐसा क्रिएट करो कि उसको कुछ मैजिकल लगे। तो मैजिक तो आप ठुमरी से भी क्रिएट कर सकते हो, आप जैज से भी कर सकते हो। आप एक फिल्म देखिए मेरी, बुद्धा इन ट्रैफिक जैम। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम मैं अपनी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैंने खुद किया है। उसमें आप देखिए, उसमें 10 चैप्टर हैं। तो जब भी हम एक से दूसरे चैप्टर में जाते हैं, मैंने एक ट्रैक यूज़ किया है, मतलब मैंने क्रिएट किया है, यूजुअली सॉन्ग ट्रैक्स हैं। तो उसमें 11 जॉनर है म्यूज़िक के। द फर्स्ट वन इज़ ट्राइबल ब्लूज, ठीक है। सेकेंड वन इज़ फोक एंड रॉक। थर्ड वन इज़ जैज। फोर्थ एक नज़्म है फैज़ अहमद फैज़ की। तो इस तरह से कुछ 11 मैंने जॉनर उसमें यूज़ किए हैं पूरे बैकग्राउंड स्कोर में मिला के, और 10 जो है वो उनके ट्रांजिशन है। तो किस लेवल तक आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो वो आपको समझ में आएगा। या आप एक्चुअली कुछ भी कर सकते हो, बट दैट हैज़ टू एक्साइट द डायरेक्टर एंड इट शुड अपलिफ्ट द विजुअल्स। सर पर अगर हमने बहुत सारे जॉनर्स इस्तेमाल भी किए हैं, हाँ। तो फिर एक मूवी के अंदर उन सारे जॉनर्स का इंटीग्रिटी कैसे सेट कर पाएंगे? नहीं, उस तरह की फिल्म आपको रेयरली मिलेगी जिसके अंदर आप इतने जॉनर एक साथ डाल सको। तो मुझे मिल गई वैसी फिल्म, वैसी रेयरली बनती है फिल्म। लेकिन मैं सिर्फ वो आपको बता रहा हूँ, आप वो देखेंगे तो समझ में आएगा कि आप एक्सपेरिमेंट किस लेवल तक कर सकते हो। फिर आप वही एक जॉनर पकड़ के पूरा म्यूजिक कर दो, है ना। तो अंधाधुन जो फिल्म है, ये आप अंधाधुन देखिए आपने, तो उसमें जो भी जोन है म्यूजिक का, आप उससे बहुत ही अलग, आप अगर आप उसका पूरा म्यूजिक आप सोचो कि मैं वेस्टर्न क्लासिकल तरीके से करना चाहता हूँ, अंधाधुन आपके पास है ना। आप अंधाधुन के कुछ अपने जो फेवरेट सीन्स है जहाँ पे अच्छा बैकग्राउंड स्कोर है, उसको पूरा रिप्लेस कर दो, उसमें वेस्टर्न क्लासिकल डालो, एक बार देखो तो सही कैसा लगता है, ठीक है। और नहीं तो वेस्टर्न क्लासिकल छोड़ो, मैं करूँगा कोई इंडियन डालो, ठुमरी डाल के देखो। तो वो एक्सपेरिमेंट्स आप करते हो तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मतलब सिर्फ ऑडियो या म्यूजिक के बारे में नहीं, आपको विजुअल्स के बारे में भी बहुत कुछ समझ में आएगा कि विजुअल्स जो है वो कितने कलर्स हो सकते हैं म्यूजिक के बाद। और अभी तो बहुत सारी फिल्म ऐसी आ रही है जिसमें बैकग्राउंड स्कोर होता ही नहीं है। अभी सोनी करके एक फिल्म आई, आप देखिए नेटफ्लिक्स पे, तो सोनी में बैकग्राउंड स्कोर है ही नहीं, और सारा का सारा जो क्रिएट किया है, उसका मूड क्रिएट किया है, वो साउंड डिज़ाइन से किया है। तो साउंड डिज़ाइन सिर्फ वही नहीं होता जो उस समय अवेलेबल है, उसके अंदर चीज़ें प्लांट की जाती हैं। आप तो जानते होंगे जो साउंड के लोग हैं, कि उसमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ प्लांट की जाती हैं बहुत स्मार्टली, ताकि वो एक खास मूड क्रिएट हो विदाउट म्यूजिक। जैसे हो सकता है कि आप दिखा नहीं रहे हो, लेकिन एक जगह जहाँ पे एक्सकेवेशन चल रहा है, तो एक मान लो ढांग 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 करके आवाज़ चले जा रही है, तो वो एक खास तरह की रेस्टलेसनेस क्रिएट करेगी उसके अंदर, जो कि एक्चुअली वहाँ पे जहाँ शूट हो रहा है वहाँ कुछ ऐसा है नहीं। तो वो सब चीज़ें प्लांट की जाती है। तो वो भी आप कह सकते हो कि वो बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, लेकिन वो एक स्कोर का पार्ट है। यस सर, सपोज एक फिल्म है जिसका जॉनर है हॉरर, हाँ, और आपको उसमें थोड़ा क्रिएटिव भी डालना है, आप बाकी जॉनर्स भी यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सीन्स। अगर मतलब बाकी जॉनर्स भी उसमें उस फिल्म में बीच बीच के पोर्शंस में आपको यूज करना है। अगर नहीं मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि मर्ज कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे जॉनर अलग अलग तो यूज करना बहुत मुश्किल है, वो रेयर होता है। मतलब बता रहा हूँ, हॉरर की ट्यून तो कुछ स्पेसिफिक सी होती है, वो नोट्स होते हैं, वो तो है ना। तो वो नोट्स आप उसके बाद आप वो ओपेरा वॉइसेस में क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप वेस्टर्न क्लासिकल में क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप क्या बोलते हैं ब्लूज या जैज से क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप बिल्कुल रेगे और इन सब चीज़ों से क्रिएट कर रहे हो, वो तो आपके ऊपर है। या पूरा रॉक से क्रिएट कर रहे हो। सारी चीजें, मतलब इतनी सारे अलग अलग चीजें यूज करने के बाद भी आप फिल्म का एक पर्टिकुलर जॉनर कैसे मेंटेन रखते हैं? उसका एक तरीका ये है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो अपनी हॉरर फिल्म के साथ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप क्या करो, एक जो बेसिक उसका जो बैकग्राउंड स्कोर जो है, उसके अंदर साउंड के अंदर बेसिक चीज़ मान लो आपने रॉक डिसाइड कर लिया, तो गिटार्स आ गए, इलेक्ट्रिक गिटार्स आ गए, ड्रम्स आ गए, है ना। अब उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ा वोकल्स यूज़ करो, या आप क्या बोलते हैं मे बी थोड़ा इंडियन क्लासिकल यूज़ कर लो, बट वो बेड जो है वो उसी का रहेगा जो आपने एक बार डिसाइड कर लिया। तो अगर आपने बेड जो है वो वेस्टर्न क्लासिकल डिसाइड कर लिया, तो फिर उसको मेंटेन करो, फिर उसके अंदर और जो जॉनर आ सकते हैं जो उसमें फिट हो सकते हैं। और किसी के कोई सवाल? है कुछ सवाल? मुझे लगा जैसे फिर से कुछ
तो आप लोग क्लास में आने वाले उससे पहले आपको पता था कि इस बारे में बात होने वाली है, तो कोई सवाल बाकियों के मन में नहीं आया कुछ, या उनको आपने सबने मिलके सवाल बता दिए अपने, हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको? अरे शर्माओ मत यार, पूछो, सवाल है ही नहीं कोई। Sir, I want to know that because is there any changes in the music after the edit is complete, or due to edit you have changed the music somewhere in the film? या बिल्कुल, ये तो होता है, ये बहुत बार होता है कि आपका एडिट कंप्लीट हो गया और म्यूज़िक में जो भी आपके डायरेक्टर हैं जो जिस तरह का अपलिफ्टमेंट चाहते हैं उसके अंदर अगर उसकी कटिंग वैसी नहीं हुई है तो आप थोड़ा बहुत उसको हिलाते हो, आप कोशिश करते हो कि अगर ये ऐसा हो जाता है। जैसे आपको बताता हूँ मैं, आपको स्पीलबर्ग जो है उनके बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं म्यूज़िक के जो बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पहले म्यूज़िक एक स्क्रैच रिकॉर्ड करते हैं, शूट करते हैं, उसके हिसाब से एडिट करते हैं, और अगर एडिट में उनको लगता है कि नहीं अब चीज़ें कुछ और ऐसी कर सकते हैं तो फिर उसके बाद री रिकॉर्ड करते हैं म्यूज़िक। तो टू एंड फ्रो होता है कई बार। So you also face some this kind of situation in film Anarkali of Ara? अनारकली ऑफ आरा में दो अलग तरह के चैलेंजेस थे, बताता हूँ आपको, दो मुझे जो खास याद है। वो एक ये था कि उसके सेकंड पार्ट में, फिल्म के सेकंड पार्ट में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो रही थी और वो बैकग्राउंड स्कोर से भी नहीं हो सकती थी। सो देन वी डिसाइडेड टू क्रिएट अ सॉन्ग फॉर दैट, बैकग्राउंड सॉन्ग, और उसके अंदर मोन्टाजेस वगैरह जो है उसको यूज़ करके हमने फिर वो उसको क्लोज किया, क्योंकि शूट कंप्लीट हो चुका था, दोबारा से और शूट करने का कोई चांस नहीं था, और बिना बात के हम सीन्स भी बढ़ाना नहीं चाह रहे। तो जो चीज़ हमें शायद 4-5 सीन्स में हम क्रिएट करते, एक क्लोजर था उसका जिसमें 4-5 सीन लगते हैं, यानी ऑलमोस्ट 10 मिनट लग जाते हैं, वो हमने 2 मिनट के सॉन्ग में उसको कंप्लीट कर लिया। तो ये एक तरीका, एक चीज़ थी। दूसरा ये था कि इस फिल्म, आप जब फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा, उसका फिल्म का क्लाइमेक्स जो है वो एक सॉन्ग के साथ है, इसमें काफ़ी हाई एनर्जी परफॉर्मेंस है और काफ़ी लास्ट तक जाते जाते फिल्म में काफ़ी उस गाने के अंदर काफ़ी कुछ शोर भी है इनफैक्ट। अब वो क्लाइमेक्स ख़त्म हो गया, पोस्ट क्लाइमेक्स एक डायलॉग पे ख़त्म होता है और वहाँ से फिर जो प्रोटैगनिस्ट है वो चलना शुरू करती है। अब वो उसका चलना है कुछ 2-2.5 मिनट का, जो कि खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अब आपको इमोशंस क्रिएट करने हैं। तो अब इतना हाई एनर्जी म्यूजिक हो चुका है, तो इसके बाद आप क्या करोगे? तो उस समय हम लोगों ने एक म्यूजिकल पीस क्रिएट किया जो ऑलमोस्ट लाइक अ ललाबाई, तो वो वर्क किया उसके बाद। तो मतलब इतना हाई एनर्जी के बाद फिर एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो बहुत सॉफ्टली आप प्ले करते हो और वो आपको रुला सकती है। तो ये दो चीज़ें। हाँ। And so what kind of knowledge he should have to before making film, but he should have a sense of music. Even he is not a musician or he doesn't have a background of musician. आपको एक तो सबसे पहले म्यूजिक सुनना चाहिए, सिर्फ सॉन्ग्स नहीं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनना चाहिए तो बहुत सारा, है ना। और जो मैं अभी आपको बताया वो एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए, है ना। आपको जो भी म्यूजिक पसंद है आप एक बार लगा के तो देखो वहाँ पे, तो आपको समझ में आया है कि अच्छा ऐसा भी मतलब हो सकता है। तो जिनको म्यूजिक की बहुत ज़्यादा नॉलेज अगर नहीं भी है, ये करना तो बहुत आसान है ना, आपको क्रिएट थोड़ी करना है म्यूजिक। आपको फलाने फिल्म के म्यूजिक का बैकग्राउंड स्कोर निकाल के अलाने वाले पे लगा के देखना है कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो ये करना तो काफ़ी फन रहेगा, मज़ा आएगा आपको, आज ही से करना चाहिए शुरू। So, any more questions? सर, हाँ। सर आप जहाँ तक मेरे को पता है विकिपीडिया से देखा था कि आप क्लासिकल्स में ज़्यादा फोकस्ड हो फिल्म स्कोरिंग में, और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो भी हम यूज़ करते हैं कॉमनली गिटार, इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स, वो सब में फोकस्ड हो। लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक के बारे में क्या सोचते हो कि वो सिन है या फिर सोचे? अच्छा, तो जो विकिपीडिया में जो भी लिखा हुआ मेरे बारे में मैंने नहीं लिखा है जिसने भी लिखा है उसको पता होगा। लेकिन बॉलीवुड में जितने भी जॉनर होते हैं म्यूज़िक के वो सारे तो हम यूज़ करते हैं, सबके सब कुछ करते हैं। नहीं, मैंने भी देखा है। और क्लासिकल जो लिखा है वो बेसिकली शायद वेस्टर्न क्लासिकल होना चाहिए था, क्योंकि मेरा वहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा है। बॉलीवुड में एक्चुअली ये बॉलीवुड और नेटफ्लिक्स में अगर मैं कंपेयर करूँ
तो नेटफ्लिक्स में भी हमारे कुछ सीरियल्स आए हुए हैं तो बॉलीवुड में ठीक होता है चीज़ें चलता है। नेटफ्लिक्स में बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड इमोशन होते हैं और वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिकली बनाया जाता है। हाँ। तो क्या आपने कभी ट्राई किया है कि इलेक्ट्रॉनिकली कुछ करें बॉलीवुड में ऐसा? इलेक्ट्रॉनिक तो मतलब जो भी हम ट्रैक बनाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिकली तो कुछ करना ही पड़ता है, बिना उसके होता ही नहीं है। ट्वीक तो करना पड़ता है। नहीं, सिर्फ ट्वीक ही नहीं करना पड़ता। मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक सिंपल सी बात है कि जो अनारकली के गाने हैं पूरे देसी गाने हैं, सब ढोलक तबला बिल्कुल देसी टाइप काम चल रहा है, बट उसमें जो बेस गिटार बजाए तो वो तो कीबोर्ड से बजाया हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, परकशन जो है वो बहुत सारे कीबोर्ड से बजाए हुए हैं, तो वो तो करना ही पड़ता है। आप बेसिकली कीबोर्ड पे जाते हो या प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा जाते हो तभी जब आपको एक्चुअली कॉस्ट कटिंग करनी होती है, वरना वही इलेक्ट्रॉनिक जो साउंड्स हैं वो तो उसके एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना बने हुए, वो आप यूज़ कर सकते हो। आमतौर पे उस पे जाने का मतलब होता है कॉस्ट कटिंग। सर, हाँ सर आपकी नज़र में कोई एक ऐसा मूवी में फ्लॉप कि जहाँ पर म्यूजिक जो है वो बिगड़ा है हल्का सा और उसने पूरी मूवी का एक मूड ब्रेक कर दिया? नहीं, ये तो बहुत सारे हैं, मतलब एकदम से याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारा तो अक्सर ध्यान जाता है। ऐसा लगता है कि यार यहाँ म्यूजिक क्यों डाला है, मतलब क्या ज़रूरत है, ऐसा बहुत बार होता है। ऐसे कोई स्पेसिफिक चीज़ बहुत बिगाड़ा हुआ है लेकिन नोटिस नहीं हुआ? अच्छा, मैं एक बता सकता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत मतलब बहुत ओवर है और थोड़ा उससे बेहतर हो सकता है, और वो हिट फिल्म है। वो फिल्म है स्पेशल 26। स्पेशल 26 में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो थोड़ा मतलब ज़्यादा है, वो मतलब वो थोड़े शोर के लेवल पे चला जाता है। पूरा कुछ नहीं, बहुत सारी जगह, नहीं पूरा नहीं, काफ़ी सारी जगह। वो मिक्सिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब मैं वो बोल नहीं सकता, लेकिन थोड़ा जारिंग है वो। बैकग्राउंड स्कोर वैसा होना चाहिए कि आप जब फिल्म देख रहे हो आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए उसकी तरफ, इसीलिए उसका नाम बैकग्राउंड स्कोर है ना। वो बैकग्राउंड पे, फोरग्राउंड पे नहीं है। फोरग्राउंड पे उस समय फिल्म है। तो जब भी अननेसेसरीली आप म्यूजिक डालते हो तो वो खराब करता है। सर, अगर डायरेक्टर हैं हाँ। और उनको किसी सीन पे स्पेसिफिक म्यूजिक चाहिए, हाँ, उनके दिमाग में वही है कि मुझे वही म्यूजिक चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे ये म्यूजिक के बजाय अगर आप ये डालोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लड़ना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में आप डायरेक्टर की सुनोगे अपनी या फिर फ्यूजन करके डालोगे? नहीं, फ्यूजन नहीं, मैं अपनी चीज़ जो है उसको करके दिखाऊंगा, उसको 3 बार 10 बार 20 बार करके दिखाऊंगा, और फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो फाइनल कॉल तो नहीं है। अगर सैंपल्स बनाए कि इस म्यूजिक के साथ ऐसा लगे और इस फलाने के साथ ऐसा लगे, तो सर उसमें वो डिसाइड कौन करता है कि कौन सा म्यूजिक, मतलब कौन सा फ्रेम एक्चुअल है, परफेक्ट है, जो रखा जाएगा, जो मूड क्रिएट कर रहा है, जो उसको नीडेड है उसमें? मतलब 80-90% तो हमारा ही कॉल होता है। हाँ, बट जहाँ पर एकदम बिल्कुल वैसा हो जाए कि नहीं यार ये तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा म्यूजिक, तो आमतौर पे क्या होता है वहाँ से भी म्यूजिक हटा ही दिया जाता है, वहाँ म्यूजिक रहता ही नहीं है, यूजुअली ऐसा होता है। Sir, I have a question, sir. So what kind of idea do you want to share about today's music productions? That today's music productions are more digital than the earlier 80s days. तो आज के ज़माने में सर हम टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो कि पहले सर एनालॉग में काम हुआ करते थे, किशोर कुमार के समय की बात कर रहा हूँ, और आज अरिजीत सिंह गा रहे हैं यहाँ पे, उनमें हम और ज़्यादा लेयर्स इफेक्ट्स डालते हैं उनके वोकल्स को और खूबसूरत करने के लिए। तो इसके हिसाब से आपको क्या आप आइडिया शेयर करना चाहोगे कि लोग मैक्सिमम टाइम ये बोलते हैं कि पहले के आर्टिस्ट अच्छे थे, आज के नहीं? सो यू आर करंट म्यूजिक प्रोड्यूसर, सो व्हाट यू वांट टू शेयर दिस आइडिया अबाउट टुडेज म्यूजिक आर्टिस्ट? नहीं, म्यूजिक देखिए, मैं आपको इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप लता मंगेशकर का अपने नाम सुना होगा ना, किशोर कुमार का नाम भी सुना है, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, एकदम पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ, मन्ना डे, इनके आइडियल थे के.एल. सहगल सबके, और ये सब उनको कॉपी करते थे। मतलब आइडियल नहीं, इस लेवल पे नहीं थे कि सिर्फ उनको अच्छा मानते थे, ये सब उनको कॉपी करते थे। तो 70s में ही ऑलरेडी के.एल. सहगल की आवाज़ इतनी ऑब्सोलेट हो चुकी थी कि यंग जनरेशन नहीं सुनती थी, तो आज वालों तो भूल ही जाओ। तो किसके दिमाग में क्या है, किसका कौन आइडियल है, वो बहुत मतलब सब्जेक्टिव होता है। म्यूज़िक पहले भी बहुत अच्छा बनता था, आज भी बहुत अच्छा बन रहा है, पहले कम बनता था, आज क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, तो भीड़ ज़्यादा होने की वजह से सर अभी तो सारा रिमिक्स ही बन रहा है, पुराने गाने उठा के नया कुछ
नया कुछ आ नहीं रहा है सर। रिमिक्स, हाँ रिमिक्स बन रहा है क्योंकि रिमिक्स उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है उसको पैकेज करने के लिए। नहीं नया है, बहुत सारा है, लेकिन वो मतलब वही है जब क्वांटिटी। इनफैक्ट पुराने गाने सुनो तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं rather than अभी के जो हैं। हाँ नहीं, लेकिन ये बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पुराने गाने बिल्कुल पसंद नहीं आते। ऐसे बहुत सारे कंपोजर्स हैं जिनको पुराने गाने पसंद नहीं आते, वो नया ही कुछ करना चाहते हैं। तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। हाँ 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 पेरेंट्स हमारे आज के ज़माने के म्यूजिक इडियम्स वगैरह नहीं सुनना चाहते, नहीं सुनना चाहते। 80s रॉक। हाँ लेकिन अभी जो इस समय 13-14 साल की जो टीन जनरेशन जो है, टीनेजर्स जो है, वो जो म्यूज़िक सुनते हैं आपको लगता है कि इसमें क्या मज़ा आ रहा है, लेकिन उनका वही, उनको उसी में अच्छा लग रहा है। उनको ज़रा सा भी कुछ पुरानी चीज़ हो तो उनको समझ में नहीं आती। तो जो आज की जनरेशन है उसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि रिमिक्स जो है उसको, मतलब पुराने बड़े हिट गानों को रिमिक्स करते हैं आज के हिसाब से, तो उसका जो पैकेजिंग है वो आज की हो जाती है, और उसके अंदर जो हिट वाला जो एक एक्स फैक्टर था वो तो पुराना ही है, तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो करंट जनरेशन जो है उसके साथ कनेक्ट करता है और जल्दी हिट हो जाता है। तो वही वजह होती है कि इंस्टेंटली अपनी फिल्म को पहुंचाना है, क्योंकि जिस तरह जो रिमिक्स वगैरह जो गाने होते हैं वो बेसिकली तो फिल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए ना, वो जरिया एक इन्विटेशन कार्ड है, फिल्म का पार्ट भी नहीं होते कई बार वो गाने, तो उसकी मार्केटिंग और पीआर के लिए होता हुआ। हाँ सर एक मूवी है सपोज, और आप चाहते हैं कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस सारे एज लेवल की, बच्चे से लेकर पूरे सारे देखें, और आप उसमें म्यूजिक डालेंगे, तो किस टाइप का म्यूजिक पे आप ज़्यादा फोकस रहेंगे? कि एक तो मूवी की जो मेन बेस लाइन है उस पर तो आप स्टिक टू द रहेंगे, और साथ ही साथ जो आप बाकी सारे टारगेट ऑडियंस के लिए एक स्पेशल पोर्शन, कि हाँ मुझे मूवी का ये पोर्शन बड़ा अच्छा लगता है, या मूवी का ये पोर्शन बूढ़ों को बहुत पसंद है, या ये पोर्शन बच्चों को बहुत पसंद है, और उस पर्टिकुलर पोर्शन पे आप जो म्यूजिक डालेंगे, मतलब अगर आप उसके लिए म्यूजिक ढूंढेंगे, फॉर आपको उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन किस एज का कैसे गाने सुनते। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बैकग्राउंड स्कोर में ये सब चीज़ें ध्यान नहीं दी जाती। बैकग्राउंड स्कोर में आपका काम सिर्फ यही है कि जो भी विजुअल है उसको अपलिफ्ट करना है, उसके अंदर आप ये सब चीज़ें नहीं सोचते हो। आप जो बोल रहे हो वो सॉन्ग्स में सोचा जाता है। जब आप एक सॉन्ग क्रिएट कर रहे हो तो आप कोशिश करते हो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आज तक के जितने भी ज़्यादा नंबर ऑफ सॉन्ग जो हिट हुए हैं वो जिस स्केल या जिस जॉनर में आते हैं उसी में आगे का भी सॉन्ग जल्दी हिट होने के चांसेस है। उसका एक बड़ा अजीब सा आपको एग्जांपल देता हूँ। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आलू खाया जाता है, ठीक है, या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चिकन खाया जाता है। तो आलू आप समझ लीजिए रोमांटिक नंबर है और चिकन जो आइटम नंबर है। तो दुनिया में अगर आप आलू और चिकन पे कंसंट्रेट करोगे तो ज़्यादा आपको चांसेस है कि मासी या हिट नंबर बना सकते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे स्पेशल यार एक मतलब भरवा बैंगन बनाते हैं या फिर कुछ खास तरह का मटन बनाते हैं तो फिर वो कुछ लोगों तक पहुंचेगा और वो निश बन के रह जाएगा। तो बहुत सारे स्केल्स हैं, जैसे अगर इंडियन स्केल्स देखोगे तो यमन और पहाड़ी स्केल है जिस पे ज़्यादा गाने हमेशा बने, चाहे आरडी ने बनाए हों चाहे आज भी बनते हैं। तो आप पॉपुलर जॉनर या पॉपुलर स्केल्स में उसी में गाना बनाते हो तो उसके ज़्यादा मास रीच होती है। तो वो स्केल्स आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। यस सर ऐसे एक इंटरव्यू किसी बड़े स्टार का था, तो वहाँ पे सर उन्होंने एक चीज़ बताया था कि क्लासिक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वो मतलब किसी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए, मतलब कहीं पे परफॉर्म करने के लिए या फिर कंपोजिशन वगैरह के लिए सही नहीं हो, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। सर क्या आपको जैसे कुछ मानना है? अच्छा, उनका क्या कहना था कि सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है? प्रैक्टिस के लिए होता है, मतलब और एक बहुत बड़े स्टार। हाँ यार वो तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं अभी एक फिल्म कर रहा हूँ ताशकंद फाइल्स, उसका म्यूज़िक कर रहा हूँ। तो उसके अंदर हमने तो बाकायदा एक ठुमरी यूज़ की है जो कि पंडित राजन साहब मिश्रा, आपने नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना? नहीं सुना? हाँ, तो काफ़ी बड़े क्लासिकल एक्सपोनेंट्स हैं इंडिया के। और तो पंडित राजन मिश्रा जो उनके लड़के हैं रितेश मिश्रा और रजनीश मिश्रा, उन्होंने वो क्लासिकल कॉम्पोजिशन गाई और फिल्म में गाई है। तो ऐसा नहीं वहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। So we are done?
अरे वाह क्या बात है, मैं कितनी बार मुझे लगा कि ये कुछ बोलना चाह रहे हैं हाँ एज अ म्यूजिक डायरेक्टर हाँ मूवी के बैकग्राउंड में हाँ जितनी परेशानी होती है या सीरियल में सीरियल के बैकग्राउंड में, तो कौन से में ज़्यादा परेशानी होती है बना क्रिएट करने? सीरियल का मुझे ज़्यादा पता नहीं, मैं सीरियल करता नहीं हूँ एकदम, लेकिन एक जो चीज़ मैंने सुनी है वो ये कि जैसे अगर आप फिल्म का म्यूज़िक कर रहे हो आपके पास एम्पल टाइम होता है, टाइम काफ़ी होता है आपके पास करने के लिए। मतलब जैसे अगर आपको 1 महीना मिला एक फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर करने के लिए, तो अगर 1.5 महीना भी लग गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरियल में प्रॉब्लम ये होता है कि जो मुझे दोस्तों ने बताया है कि शुरू में एक एपिसोड करने के लिए 4 घंटे मिलते हैं, फिर धीरे धीरे वो 2 घंटे पे आ जाता है, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आधे घंटे में दे दो जो भी है तो क्योंकि सारी टाइम लाइन जो है वो लास्ट पे शिफ्ट होती है और वो एयर होना ही होना है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो अब कल जाएगा वो, उसमें जो म्यूज़िक है तो ठीक है, नहीं है तो फिर बिना म्यूज़िक के जाएगा। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब उसमें आप क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन नहीं ढूंढ सकते।